was just discussing right now, we're still in shock. I'm in shock. I knew this was a very special song that will do well. Check. But अभी तो मैंने ट्रैक करना बंद ही कर दिया है क्योंकि रोज 10 मिलियन 15 मिलियन it's completely gone insane. और ये सब पूरी टीम की वजह से है। भूषण जी ने मुझे ये ट्रैक सुनाया था लॉकडाउन के टाइम पर एंड आई वाज लाइक I'm waiting to shoot this. जुबिन के साथ काम कर चुका हूँ and he's got a beautiful, such a soulful voice. Manoj, Tanishq. I think everyone has added so much value to this track, and of course, then when Radhika and Vinay came into this, it just added so much value again. And of course, Yukti. I don't know, Yukti is not here. Oh, she's here. Yeah, you have to make her open that bottle with her. Yeah, that's become quite a. So yeah, it's just been very special, and here's to more millions and more crore views, and we'll add more to Bhushanji's bank account. Yeah. 1 billion soon? Huh? Billion? 1 billion soon? For sure. So, that's what I call my first reaction on my show when I heard this track. I was like, what a trippy track. और उसके बाद जाके video देखा, like it's trippy. It's just amazing. What a powerful visual and song. Yeah, it's like a masala film, na? मजेदार. Yeah. Everything Action is drama. there in that 5 minutes. There's action, there's romance, there's angst, there's of course there's tragedy at the end. So yeah, it's all thanks to So these what's two the wonderful raz? people. Every time you're there in a track, you just. देखो मैं इसके लिए मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता अच्छा, हूँ. okay. I just turn up. ये मुझे डायरेक्ट करते हैं. थोड़ा लिप सिंक कर लेता हूँ. मुझे इसका प्लीज क्रेडिट मत दो. अच्छा. All Fair credit goes enough. to these people. हाँ. I've had it easy. It's all thanks to them. So yeah. ये लॉकडाउन ने सिंगर्स के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक मींस म्यूज़िक लेबल्स को स्पेशली हमें एक कंसंट्रेशन करने का आर्टिस्ट के लिए एक वक्त मिल गया. तो उस दौरान जो मैंने गाने बनाए हम लोगों ने पूरी टीम के साथ मिलके और फिल्मों का म्यूज़िक तो आ नहीं रहा था, तो इसलिए लोगों को एंटरटेन करने के लिए आपको किसी तरीके से तो करना है. तो सिंगर्स की तो लॉटरी लग गई, तो उनके इसका लाइक हमें सिंगर्स करने के लिए आर्टिस्ट को बोलना पड़ता है, यार अभी हमारा फिल्म म्यूज़िक आ रहा है तो आपका अभी रुक के करते हैं. 6 महीने बाद करेंगे, 1 साल बाद करेंगे. तो अभी इसके ऑल टुगेदर आई गेस कितने 10 या 12 सिंगल पूरे साल में आ गए. मीन्स इट इज़ म्यूचुअल, क्योंकि हमें भी ज़रूरत थी और इनको भी इतने सारे गाने मिल गए और लकीली सारे गाने इसके सुपर डुपर हिट हुए. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि द काइंड ऑफ सॉन्ग्स वी मेड एंड देन उसने अपनी आवाज़ में किए एंड देन लॉट ऑफ देम वी पिक्चराइज्ड ऑन हिम एंड दिस इज nail in the coffin actually, because this is the biggest song with a combination of Zubin Nautiyal and Imran Hashmi together. Completely. So it is, वो कहते हैं ना, मीन्स आग और पेट्रोल का काम हुआ है, आग और मतलब दोनों पेट्रोल। चीज़ें मिक्स होके जिस तरीके से ये लिरिक्स लिखे मनोज ने और तनिष्क ने उसको इतने अच्छी तरीके से कंपोज किया एंड विनय राधिका ने जिस तरीके से गाने को शूट किया है, इट इज़ very good. And this is, I mean, I can proudly say this is our biggest song. Means I can't see any other song अभी तक जो इतना fast, इतने number of streams ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे और प्लस यूट्यूब पे इतने सारे एक स्ट्रीम्स मेरा भी रील है उसमें. यस रील्स पे मैं भी 2 बार बोल चुकी हूँ. रेडियो स्टेशन पे एवरीवेयर इट इज डूइंग द नंबर्स व्हिच वी हैव नेवर हर्ड एक्चुअली. So when you saw the track, all three of you, this question, when you saw the track for the first time, what was your reaction? मतलब ऐसी feeling है कि ये तो बवाल हो गया है. This is going to be a bomb. Like it's going to explode. Yeah, for sure. I was actually very happy when Vinay and Radhika gave me the pitch also. I remember it was a Zoom call और उन्होंने मुझे narration दी. तो मैंने कहा यार this is as interesting as a proper Bollywood blockbuster film क्योंकि इसमें सब कुछ है. And then when I turned up on set, just the way they had mounted everything, just the way the look was, और बहुत काम करवाया by the way, हाँ, बहुत means overshoot किया, लेकिन eventually हमने we shot one day we shot at 6:30 in the morning, 7 in the morning, but I didn't complain because I knew that they are so passionate about it and it was so infectious, and no one can argue with Vinay when he comes and says that sir एक और घंटा but eventually
I think both of them are fantastic. Just the visual representation of the track, of how they've put it up there, amazing. has complemented everything in the Everything song, else, yeah. and that's what makes it such a good That's watch. true. That's true. Zubin, you also, when you saw the track for the first time, were you like this? This is gonna be hot. Super Yeah, I mean, hot. I kind of couldn't wait for the film that's Yeah. following with it, and I would big love to Radhika and Vinay both shot it like. Acha, I had never got to see the other part of it. I just got to see it when it released, so it was like way beyond what I'd imagined. Really Totally. So amazing. that means it was total fun. Yes, yes. Okay, now it's time to call the man जिनके शब्द हैं उसमें. And the man जिसने पिछले एक साल में back to back hits दिए बहुत सारे गाने देखते देखते there's गलिया, there is कैसे हुआ ओ हो and मेरे रश के कमर ओ मज़ा ही क्या बोलूँ I get excited about songs. Being an RJ, I think that's a side effect. And now it's time that we have him on stage and like find out romantic real. I am. I'm hopelessly romantic. Wow. And especially Are you when married? Of course, I'm married. And is there a good news or a bad news to you? That's great. Okay. So yeah, it is hopelessly romantic, and it is whatever it is. I have to just tell a little anecdote. There is a poet, very famous poet, sir, Emily Dickinson. So she's a poetess. अब हम poet बोलें या poetess बोलें तो 150 साल पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लिखा करती थी. So there is a quote by her that poetry is dictation by God. तो ये मैं जब बहुत 10-12 साल पहले पढ़ा तो मैंने कहा यार ये बात सही तो है लेकिन ये फिल्मी गानों पे नहीं लागू होती है, या जिस तरह का हम पॉपुलर म्यूज़िक करते हैं, कमर्शियल म्यूज़िक करते हैं, उसमें ऐसी पोइट्री की ज़रूरत नहीं है जो डिक्टेशन बाय गॉड हो. फिर एक दिन 7 साल पहले मैं भूषण जी से मिला और मैंने इनको लिखना शुरू किया, वो दीवाना मस्ताना टाइप के जो राइम्स होते हैं रेगुलर वाले, और गाने रिजेक्ट होने शुरू हुए. पहला नहीं अच्छा लगा, दूसरा नहीं अच्छा लगा. देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि इन्होंने पता नहीं एमिली डिकिंसन को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट ही लिव्स बाय दैट रूल कि अनलेस इट इज अ डिक्टेशन फ्रॉम गॉड आई एम नॉट गोइंग टू से यस टू दीज लिरिक्स. Okay. सो दैट इज द रीजन फॉर मी एंड वेरियस अदर लिरिसिस्ट जो अच्छा लिखते हैं टी सीरीज के लिए और बाहर जाके पता नहीं क्या लिखते हैं. तो रीजन ये है कि हमारा अप्रूवल नहीं मिलता हमें जब तक हम कुछ बहुत अच्छा ना लिखते हैं. सो दैट इज द प्रॉब्लम. Bye. ऐसे अप्रूवल फिर ऐसे ही मिलना चाहिए because this is how magic happens. Yeah, this is how how are you ma- feeling right now? I'm sure you're very very happy, but this huge like आई एम फीलिंग लाइक पाँव रखना ना जमी पर. क्या बात इसमें दो लाइनें हो ही जाए फिर तो. या पाँव रखना ना जमी पर, जान रुक जा तू घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते. ये बात हुई ना. तू आजमा ले मुझको यारा, तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते. उफ. मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में. क्या बात प्लीज गाइस इस पे तो बनता है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. Thank you very much. थैंक यू. सबसे पहले तो इमरान जी हैप्पी बर्थडे आपको. Thank you so much. Thank you. जब इस तरह से गाने हिट होते हैं, आपने बताया कि ये डायरेक्टर का कॉल नहीं था, लेकिन जब इस तरह से गाने हिट होते हैं तो आपकी इच्छा ऐसी होती है कि 1-2 किसिंग सीन होने चाहिए थे ऐसी? ये थैंकफुली किसिंग सीन के बिना हिट हुआ है. हाँ जी. तो मैं बच गया अभी. मींस अभी डायरेक्टर्स फोर्स नहीं करेंगे ये सीन्स, तो इसमें बच गया हूँ. अच्छा भूषण समझे जी. आप? हाँ जी मैं समझ गया. हाँ. हाँ भूषण जी आप बताइए कि ऐसे इमरान जी के गानों में ऐसे किसिंग सीन तो होना कंपलसरी है? बट क्यों, किस लिए कंपलसरी है? मतलब और हिट होंगे, बिलियन जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं होता है. वो आई थिंक इमी अपने पर्सनल बोलते होंगे कि मेरे को किस करना है, लेकिन गानों को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता. तो तकरीबन भूषण जी तकरीबन जी. साल 2021 में और कितने ऐसे सिंगल आ जाएंगे एंड इमरान जी के साथ में कितने रहेंगे अगर आप बता सकें? देखिए इमरान जी ने मतलब फिल्में भी करनी है तो वो सिंगल्स कुछ हम इनसे करवाते रहेंगे. एक सिंगल तो मैं ऑलरेडी अभी हम प्लान कर रहे हैं जो अभी इनको मैंने बताया भी नहीं है, बट होपफुली दैट इज़ इक्वलेंट टू लुट गए जिस तरीके से वो बन रहा है. सो दैट विल डेफिनेटली प्लान सूनर. हाय इमरान, फैजान दिस साइड फ्रॉम न्यूज़ हेल्पलाइन. मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है गानों आपके गाने को, इस सिंगल को, कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ यही गाना मुझे प्ले होते हुए दिख रहा है. आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, आपसे जानना चाहता हूँ. एंड कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आप शेयर करना चाहें? वेल जैसे मैंने अभी बोला इससे पहले, कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने कहा कि जब मैं बाहर जाता हूँ जिम या कहीं शूट पे, देयर आर ऑलवेज पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड ब्लूटूथ स्पीकर्स के साथ,
और वो गाना रिपीट पर सुनते रहते हैं। जब मैं अंदर जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ, तो ये इस किस्म का क्रेज़ मैंने शायद ही किसी गाने के लिए देखा हो। इट्स बिकम सच अ रेज, लोग गुनगुना रहे हैं, ये इट्स एक नशा है। इट्स बिकम लाइक सच एन एंथम सब लोगों के लिए। और रील्स भी, इतने रील्स बन चुके हैं इंस्टाग्राम पर, इट्स द हाईएस्ट एवर फॉर एनी इंडियन सॉन्ग। तो ये एक टेस्टमेंट है कि इट्स जस्ट कॉट ऑन लाइक वाइल्ड फायर। एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग, मुझे पता है कि एंड वी ऑल न्यू इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग एंड विल डू वेल, लेकिन ये खुद की एक दिशा होती है, और बस लग गया अभी, एंड किस लग तरीके गई से आग। एंड किस तरीके से आप ऑन बोर्ड आए? जिस तरीके से आपने बताया कि जूम मीटिंग थी, भूषण जी ने क्या आपको ब्रीफ दिया इसके बारे में, एंड राधिका एंड नहीं, हमने तो आई थिंक जुलाई अगस्त में बात की थी, पिछले साल लॉकडाउन में। सब उतावले हो रहे थे, लॉकडाउन में कुछ करने को था नहीं, काम का डिस्कशन था, फिल्म कभी ख़त्म करेंगे, गाना कभी शूट करेंगे। बस एक गाना सुना दिया एक रात को, और जब मैंने गाना सुना, झट से मैंने भूषण जी को फ़ोन किया, कहा कि दिस इज़ अ फैंटास्टिक सॉन्ग, आई लव इट। एंड बातें चल रही हैं तब से, मैं रहूँ ना रहूँ से पहले भी। उसके बाद थोड़ा वक्त बीत गया, वी वांटेड समथिंग स्पेशल। तो जब उन्होंने ये सुनाया गाना, तो मैंने कहा कि यार, लव टू बी पार्ट ऑफ इट। आई डिडंट ऑल्सो वांट टू बी लाइक एन ओवरकिल, यू नो, इतने सारे म्यूजिक वीडियोस में। आई वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल। तो जब ये गाना सुना मैंने, तो आई फेल्ट दैट दिस इज गोना बी अ ट्रीट फॉर द ऑडियंस। वीडियो में कमेंट सेक्शन में ऐसा बोल रहे हैं फैंस कि इमरान हाशमी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और 30 डेज़ में 250 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, और फैंस चाहते हैं कि और भी आप म्यूज़िक वीडियोस बनाएं। तो आप और आगे म्यूज़िक वीडियोस बनाना पसंद करेंगे इमरान हाशमी? अच्छा है कि रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर मैं हर 2 महीने में म्यूज़िक वीडियो देना शुरू कर दूं, तो डेफिनेटली रिप्लेसमेंट फिर मांग लेंगे। तो उनको थोड़ा ठहरना पड़ेगा। दैट्स द होल थिंग ऑफ एक्सक्लूसिविटी। जो एक स्पेशल होगा, एक स्पेशल एक्सपीरियंस जब सब दोबारा मिलकर फिर से बनाएंगे। आई वुड नेवर से नेवर, डेफिनेटली एक और करूँगा टी सीरीज़ के साथ, पूरी टीम के साथ, बट we'll do it when we have something fascinating. Hello. Hi Imran, Hi. this is Nityanshi here from Film Window. Hi. So my question to you is that you've done a lot of, like, you're the face of Bollywood, one of the most popular faces of Bollywood, and now there's a season where we see one after the other music videos coming. So what do you have to say about this shift? Like pehle ek digital shift aaya, and then there's this single shift, music video shift. So how is the working experience and audience point of view? Say, what do you think, is music videos now attracting everybody more? No, it's not about attracting people more. I think it's definitely an added avenue. I mean, music videos were always there. It's just that एक जो digital का explosion हुआ है in the past few years with a lot of things, music videos, OTT, और अभी lockdown में किसी के पास कोई और चारा नहीं था, and everyone has understood the certain value of music videos and OTT and a digital space. That's huge. There's so much of scope here, and it's giving work to so many more people. It's not just theatrical film songs. Everyone has, you know, there are YouTube stars, there are Instagram stars. So it's the whole terrain has become so much wider, and it's good for everyone. And it, I think, empowers the audience क्योंकि इतने सारे choices हैं अभी. And because इतना सारा competition है, I think the work also is getting better. Because whenever there's competition, you want to take the best step forward and kind of up your game. So yeah. Hello, sir, Imran. So, sir, this is Vishal Ambani from Yes Data News, and wish you many happy returns of the day. Thank you. And sir, your movie is also doing great. Mumbai Saga, sir, आपका song भी अच्छा है. So, don't you think this is a 2.0 version of Imran Hashmi? I don't know. That's what I keep hearing that again from people. I don't know what version it is. I'm still putting in the work that I've always put in. Yeah, I think जो concerns हैं, जिस तरह मेरी जो फिल्मों के selections हैं अभी, एक तरह से एक, you know, I want to change things around. And जो अभी roster है फिल्मों का, अभी चेहरे release होने वाली है 9th April को. It's a new side that people have not seen, and that's not just a conscious effort from my part. Also, I've been lucky कि ऐसे scripts मिले हैं मेरे पास. लोग आए हैं and they've approached me with fantastic scripts. So yeah, it's all thanks to those offers, and I hope it
continues that way. Yukti, welcome. Hello, 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 hello. Hi, congratulations. How are you feeling? पहले तो आई एम सो आई एम लेट बट ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इट्स 285 million राइट Yeah. 285 million आई एम सो हैप्पी और मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकती थी मेरा डेब्यू और इमरान सर के साथ और भूषण जी का पहला गाना और विनय सर और राधिका मैम डायरेक्टर्स एंड जुबिन